Good morning, students. This is your SST classes, and the chapter is power sharing. It's the part of civics. The first chapter, power sharing, says about the share of power between different groups. We have considered here Belgium and Sri Lanka story. There are two countries. One is Belgium, second is Sri Lanka. Both the country are doing well in their areas, but what is the situation in Belgium and Sri Lanka in the past we have discussed here. Second is majority in Sri Lanka. There is two things, one is minority, second is majority. Any country have two type of peoples, one is in minority and second is in majority. So which kind of situation is in Sri Lanka we have faced is an example where the power is not shared between two groups. There is a difficulty, there is a civil war happened in that country. Next, we have to focus to accommodate between both the people, all the communities they are living there. Now the topic is saying about the accommodation in Belgium. The people of Belgium has share their power between each other so that they are living peacefully in the country. But if we talk about our country, or if we talk about India, not India, if you talk about Sri Lanka, then there is a civil war happened in Sri Lanka, and due to this civil war there is a heavy loss happened in Sri Lanka. And this war that happened in Sri Lanka is an example how a good country, how a best country is going in hell due to the civil war happened in the country. So we have to take lesson from this chapter, and by this lesson in future we have to survive our country, we have to protect our country, we also protect ourselves from the war and from the discrimination. Students, by reading this chapter we have to learn a lesson, we have to learn one thing, that anywhere, everywhere, nothing is going well with the help of war. All the things are going well with only the help of peacefulness, wellness, and by accommodation. In the last moment there is a form of power sharing. The power is shared on the basis of two or three types. Here it's given on the basis of two types. One is horizontal power sharing, second is vertical power sharing. If you talk about horizontal power sharing is a power share in which the people are giving equal weighted. We have giving three types of weighted. One is legislature, second is. तो बच्चे, अगर हम इस चैप्टर को समझने आए तो पिछले वीडियो के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ. ये टॉपिक शुरू होता है बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेल्जियम, जब हम देखें तो बेल्जियम एक छोटा सा यूरोप का कंट्री, और यहाँ पे दो तरह के लोग हैं. बहुत सारे लोग यहाँ जो हैं, लगभग 59% ऐसे पॉपुलेशंस हैं जो शहरों में रहती है, और बाकी के जो 40% लोग हैं वो जो हैं वो गांव की तरफ रहते हैं, गांव के एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं. और उनके अंदर जो है एक और डिवाइडेशन क्या है कि उनकी भाषा अलग है. कुछ लोग जो हैं वो फ्रेंच को बोलना पसंद करते हैं, वो 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच को पसंद करते हैं. बाकी के 59% ऐसे लोग हैं जो कि डच बोलना पसंद करते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भाषा के आधार पे 60%, लगभग 60% लोग डच स्पीकिंग हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच बोलना पसंद करते हैं. तो यहाँ के लोगों के बीच में भाषा के आधार पे भेदभाव पैदा हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, जिसके चलते वहाँ के लोगों में जो है एक लड़ाई, एक युद्ध की तैयारी हो जाती है. लेकिन अगर वहाँ एक दूसरे पक्ष को देखें तो वहाँ जो कैपिटल एरिया है ब्रुसेल्स का, वहाँ 80% ऐसे लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, जो कि बाकी के 20% डच बोलते हैं. अब कंट्री को समझते हैं. कंट्री बेल्जियम, स्थिति क्या है, जो वहाँ का जो कैपिटल है, वहाँ की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग अधिक हैं और डच बोलने वाले लोग कम हैं. जबकि अगर उसके ठीक उलट हम पूरे कंट्री को देखें तो कंट्री वाइज डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं. अब यहाँ सामंजस्य नहीं है, यहाँ दो दिक्कत है. अगर कंट्री वाइज देखें तो डचों का मेजोरिटी में होना दिखता है, डच बोलने वाले लोगों का. लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके कैपिटल की बात करें तो वहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने फ्रेंच को बोलना पसंद किया है. तो ऐसे में एक समस्या ये आ रही थी कि क्या किया जाए. तब उन लोगों ने तय किया कि हम जो है पूरे कंट्री को 2 नहीं 3 लेवल पे डिवाइड करेंगे.
एक ऐसा एरिया होगा जो डचों का होगा, एक ऐसा होगा जो कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का होगा, और बाकी जो लोग होंगे सब जिनको भी लगता होगा कि हम इस एरिया में न रह के कहीं रहें, उनके लिए भी एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिनको पूरी तरह से आज़ादी हो, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो, वो किसी भी एरिया में रहें तो उनको जो मन में आए वो उसको बोल सकते हैं। उन लोगों ने अकोमोडेशन को और ठीक करने के लिए क्या किया, बहुत ऐसे जगहों को उन्होंने जो है दोनों लैंग्वेजेस में लिखना शुरू किया। जो ऐसा एरिया रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, उन एरियाओं को दो नाम से लिखा। एक नाम जिसको उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, फिर उसी का नाम डच में लिखा, जिसके चलते क्या हुआ, लोगों के बीच में आपसी मतभेद खत्म हुए, लोगों को अपनापन की भावना जगी, देश को जो है उन्होंने अपना समझा, और सभी लोग जो उस कंट्री को अपना समझ रहे थे उस कंट्री के लिए योगदान देना शुरू कर दिए। लेकिन अगर हम श्रीलंका चले तो वहाँ भी यही समस्या थी। वहाँ भी सिहाला स्पीकिंग लोग जो है 74% थे, तमिल स्पीकिंग 18% थे, और कुछ और लोग थे। लेकिन वहाँ जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उन पर सिहाला स्पीकिंग लोगों ने अपनी मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठाना सोचा, और इसके चलते जो है वहाँ पे एक बड़ा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि इसी युद्ध में श्रीलंका गवर्नमेंट को जो है विदेश के अलग अलग देशों से मदद लेनी पड़ी, जिसमें भारत की तरफ से भी सहायता दी गई। जाफना, ये जो जाफना एरिया है ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। ये लिट्टे संगठन का सबसे बड़ा अड्डा हुआ था। एक ज़माने में लिट्टे का इतना वर्चस्व हो गया था कि वहाँ के लिए लिट्टे एक बहुत बड़ा संगठन जो बहुत बड़ा परेशानी बन चुका था। हज़ारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन उसका रिजल्ट आज क्या हुआ कि श्रीलंका जो है बहुत पीछे हो गया और बेल्जियम दुनिया के एक अच्छे देशों में शुमार हो गया। तो इस दो टॉपिक को अगर हम कवर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं कि चीज़ों को एकोमोडेट करके ठीक कर लिया जाए, उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी रहता है। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो अपने आप को लड़ाई में ले जाते हैं, किसी माइनॉरिटी पे वो अपना कब्जा दिखाते हैं, तो माइनॉरिटी तो परेशान होती है, लेकिन इससे मेजॉरिटी को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, इससे कंट्री को भी पीछे जाना पड़ता है। तो हम अगर किसी देश को संचालित करते हैं या हम किसी देश के कंट्री हेड हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश ऐसा देश हो जहाँ गरीबों को भी न्याय मिले, अमीरों को भी न्याय मिले, कम लोग को भी न्याय मिले, और जो ज़्यादा संख्या में उनको भी मिले। ऐसा कहीं ना हो कि जो ज़्यादा में है वो अपने आप को डोमिनेट करे, क्योंकि अगर डोमिनेशन हुआ तो गरीब तो मारा जाएगा, लेकिन मरता हुआ गरीब अमीर को भी मारता हुआ जाएगा। और हमें ये दोनों बात श्रीलंका जैसे कंट्री से सीखने को मिलता है। शेयरिंग को हम अगर आगे बढ़ाएं तो पावर शेयरिंग मेजरली दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को समझें तो यहाँ पे जो है अलग अलग लेवल पे सभी लोगों को बराबर का मान्यता दिया जाता है। अगर हम 1, 2 या 3 लोगों को बराबर माने, इक्वल माने, इसी को हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। अगर हम अपने एक छोटे से एग्जांपल से समझें तो स्कूल के जितने भी टीचर हो, चाहे वो हिंदी के टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश के टीचर हो, SST के टीचर हो, सभी टीचर बच्चों के लिए इक्वल होते हैं। उनको इनसे लेना नहीं होता कि उनका क्या सब्जेक्ट है और वो कौन है, उनके लिए सभी टीचर ही हैं। तो इसी तरह से जब कंट्री को चलाने की बात आती है तो हम पहली बार कंट्री के पावर को हॉरिजॉन्टली बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपने पावर को लेजिस्लेशन को देते हैं। लेजिस्लेचर जो पावर बनाती है, जो लॉ बनाती है, उस लॉ को एग्जीक्यूटिव की जिम्मेवारी है कि फॉलो कराएं, और अगर एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो नहीं कराते हैं तो लास्ट अगर इनसे कुछ गलतियां होती हैं तो जनता डायरेक्ट उसके खिलाफ जुडिशियरी के पास जाती है और अंतिम निर्णय जुडिशियरी लेता है। भारत में लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर को है, एग्जीक्यूटिव को उस लॉ को फॉलो कराने का काम है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो ठीक नहीं है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस पर जुडिशियरी अपना अंतिम निर्णय भी लेता है। हम कई सारे केसेस में ऐसा देख चुके हैं कि सरकार के कई सारे डिसीजन को जुडिशियरी ने रिजेक्ट भी कर दिया है। इससे सरकार और जो जुडिशियरी इनके बीच में तालमेल बना होता है और जनता का भरोसा डेमोक्रेसी पे बना रहता है। डेमोक्रेसी में पावर डायरेक्ट किसी एक के हाथ नहीं होकर सभी के हाथ में बना हुआ रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग का एक और तरीका ये है कि पावर को हम वर्टिकल शेयर कर दें। हम इसको अच्छे से समझें तो हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं, हर लेवल पे सबका एक अपना काम है। अगर हम शुरू करें तो बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर उनका मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर के ऊपर में क्लास टीचर्स हैं, क्लास टीचर के बाद में सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके बाद जो है आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर सर के बाद हमारी प्रिंसिपल मैम है। तो अगर हम इस लेवल को देखें, हर एक लेवल पे एक दूसरे व्यक्ति हैं जो पहले वाले से ऊपर हैं, जो उनके चीज़ों को देखेंगे, और सिस्टम के थ्रू एक बच्चे की आवाज़ एक ऊपर के टीचर तक लेवल बाय लेवल पहुंचती है।
इसी को हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। अगर इंडिया में देखा जाए तो हमारे कंट्री को स्टेट और स्टेट के बाद कंट्री लेवल पे बांटा गया है। सेंट्रली हमारा कंट्री एक इंडिया है, लेकिन वो कई सारे स्टेट में डिवाइड है, और स्टेट्स को भी बाद में हम पंचायत में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या पावर जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों तक पहुंच जाता है। इसके बाद पावर शेयरिंग का एक छोटा सा तरीका है कि पावर को प्रेशर्स ग्रुप के बीच में दे देते हैं। अब ये प्रेशर्स ग्रुप क्या है? अगर हम प्रेशर ग्रुप को समझने की कोशिश करें तो प्रेशर ग्रुप संगठन को कहते हैं, उस कम्युनिटी को कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जो किसी एक तरह के काम से जुड़े होते हैं और वो गवर्नमेंट पे अपना पावर बनाते हैं, या गवर्नमेंट उनकी बातों को सुनती है। अगर हम अच्छे से बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि बैंक आज हड़ताल पे, ये बैंक के लोग अचानक हड़ताल पे क्यों होता है? क्योंकि ये लोग जो है ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप एक साथ काम करती है। अगर आपने कई बार देखा हो तो आज पटना में ऑटो की स्ट्राइक रहेगी। ये ऑटो स्ट्राइक एकाएक पटना में क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाए कि अगर वो चाहेंगे तो हमारे देश को वो रोक सकते हैं। सरकार को इससे असर पड़ेगा, जनता को परेशानी होगी और सरकार पे उस पर असर जाएगा। प्रेशर ग्रुप कई सारे लोगों का भी हो सकता है। कई बार ये प्रेशर ग्रुप कोई एक पर्सन भी हो सकता है। हमारे देश में अन्ना हजारे का नाम किसी से छिपा नहीं है। वो एक अकेले व्यक्ति हैं जो किसी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो उनके ट्रस्ट के चलते उनके इतना फेथ है लोगों का कि लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं और बाद में बड़ी बड़ी सरकारें उनके सामने घुटना टेक देती है। प्रेशर ग्रुप में अगर आप बात करें तो RSS, प्रेशर ग्रुप में आप बात करें तो ABVP, ऐसे बहुत सारे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि प्रेशर ग्रुप में काउंट होते हैं। तो ये था आज के लिए आप लोगों को चैप्टर 1 के बारे में कुछ जानकारियाँ। आप लोग इसको सुनिए, इसको सुनने के बाद चैप्टर को पढ़िए, और अगर कोई परेशानी होती है तो मैं फिर इस पर बनाऊँगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुद से स्टडी लिया जाए। धन्यवाद।